हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो यस गाइस, लॉ 3 इयर्स के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ गई है। यस गाइस, आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये अपडेट है। सो रजिस्ट्रेशन गाइस आपका स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 21 जून 2023। यस, आपके रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हो गई है। आप सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉ 3 इयर्स के पोर्टल पे चेकआउट कर सकते हो गाइस। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड है गाइस, उसकी भी अपडेट आ गई है। सो चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि अपडेट क्या है। सो लेट्स चेक आउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर LLB 3 इयर्स। सो यस गाइस, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट भी आउट हो गई है। सो लेट्स रीड इट आउट। Here it says documents to be uploaded along with online CAP application form in centralized admission process 2023 for LLB 3 years. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है गाइज दैट कैंडिडेट एंड पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड कीप रेडी फॉर अपलोडिंग वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। गाइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेक श्योर आप उसको स्कैन करके रेडी रखो। फोटोग्राफ इमेज, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, साइज ऑफ फोटो फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB। सो यस गाइज, आपका फोटोग्राफ इमेज, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, photo file should be between 20 to 50 KB and it should be in JPG or JPEG format. गाइस सिग्नेचर मेक श्योर कि आपका वाइट पेपर पे होना चाहिए विथ ब्लैक और ब्लू पेन। सिग्नेचर इमेज साइज फाइल है 10 KB to 20 KB के बीच में, और आपका इमेज फाइल शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट। ऑल्सो द डॉक्यूमेंट्स विच आर लिस्टेड हियर should be in a PDF format of size up to 500 KB and the scanned uploaded documents should be readable guys। अगर वो readable नहीं है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है guys and it will be considered as a non valid document। so make sure कि आपके documents PDF format में हो and size उसका up to 500 KB होना चाहिए and those documents should be scanned and they should be readable। now let's check out what all documents are required। so starting with all candidator type candidates, which includes Maharashtra state candidate, outside Maharashtra state candidates, all India candidate including Jammu and Kashmir migrant candidates। so yes, सबसे पहले about your SSC mark sheet। here it says if a candidate has passed SSC from CBSE, ICSE, IG, CSE, IB board, then such candidates will have to prepare or produce a conversion certificate। so guys, आपको conversion certificate बनवाना पड़ेगा for the mark sheet because mark sheet में काफ़ी सारी mark sheets में guys boards की तरफ से percentage mention नहीं होता है। आपकी mark sheet या तो score में होती है या तो CGPA में होती है या फिर ग्रेड्स में होती है। सो यस, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू ऑल हैव टू प्रोड्यूस और प्रिपेयर अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट गाइस ऑलरेडी लॉ 3 इयर्स के पोर्टल पे अपलोडेड है। सो यस, वो आप चेकआउट कर सकते हो एंड इट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड यू विल हैव टू अपलोड दिस conversion certificate and your SSC mark sheet in a single PDF format। okay, HSC which is your class 12th mark sheet or equivalent which is your engineering diploma। again guys, अगर आप passed out हो from CBSE, ICSE, IGCSE, IB board etc, then you all have to prepare or produce a conversion certificate because again हमें percentage की requirement होती है guys यहाँ पे, and then it should be self attested and you all have to upload your HSC mark sheet along with the conversion certificate which should be in a single PDF format। next, for the degree mark sheets, here it says that all candidates has to add the marks of all 6 semesters। आपको आपके सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स ऐड करने होंगे ऑफ ऑल द 3 years टुगेदर एंड देन फिर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन you all have to upload a self-attested conversion certificate along with the mark sheet of all semesters, first year, second year mark sheet, first year, second year and third year final year mark sheet in a single PDF। if your marks of all semesters or marks of all 3 or 4 years are mentioned in a single mark sheet, then such candidate can upload the mark sheet or the relevant document in which all the 3-4 marks are displayed and grand total and where final grade is also shown। so आपके पास जितने भी mark sheet है guys for your till your graduation, even if आपके सारे मार्क्स एक सिंगल मार्क शीट में हो, सो येस यू विल हैव टू अपलोड दैट एज वेल अलॉन्ग विद द कन्वर्जन सर्टिफिकेट कंबाइंड इन अ सिंगल PDF फॉर्मेट if it is in a CGPA or GPA form। and if the mark sheets of the first year, second year and third year are separate, then such candidates will have to upload the mark sheet of all 3 years। ऑलराइट, तो अगर आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट डिफरेंट है और हर सेमेस्टर का आपको अलग मार्कशीट के साथ स्कोर है, उसमें मार्क्स है, देन आपको वो
then you all have to upload all 3 years mark sheet along with the conversion certificate in a single PDF. Next, आपका ऑनलाइन CET एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है गाइज. आई होप आपने डाउनलोड करके रखा है सॉफ्ट कॉपी. एंड येस, CET स्कोर कार्ड चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और योर बर्थ सर्टिफिकेट और योर स्कूल डीमिंग सर्टिफिकेट और कम्युनिटी और नेटिव एंड बर्थ ऑफ एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वेयर द प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन गाइज. सो येस, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं एंड इट शुड बी स्कैन्ड. Next, in addition to these documents, candidates are required to upload the following documents depending on your category or candidate type. जो भी आप candidate type में fall हो रहे हो, accordingly आपको आपके documents ready रखने हैं. यहाँ पे टाइप ए महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है क्लियरली मेंशन्ड है गाइस इस PDF में. सो फॉर महाराष्ट्र स्टेट टाइप ए कैंडिडेट्स, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट मेंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ और योर कम्युनिटी और नेटिव एंड डेट ऑफ बर्थ. सो यस गाइस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है. आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो. नेक्स्ट, फॉर महाराष्ट्र स्टेट टाइप बी कैंडिडेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, येस इट इज़ मैंडेटरी. डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज़ डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो यस गाइस, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, योर पेरेंट्स शुड ऑल्सो होल्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ यूल फॉल इन द महाराष्ट्र स्टेट टाइप बी कैंडिडेट्स. Next, for Maharashtra type C candidate, certificate from employer in pro forma A stating that father or mother of the candidate who is a central government or government of India undertaking employee and is presently posted in or outside Maharashtra. So yes guys, एक प्रूफ भी लगेगा. You will have to provide a certificate as well stating that your parents, your mother or father सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं एंड दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड दे आर प्रेजेंटली पोस्टेड इन और आउटसाइड महाराष्ट्र. वैसे ही सारे कैंडिडेट टाइप के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन है गाइस यहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट टाइप डी कैंडिडेट, बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंगिंग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, सारी जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है गाइस अलॉन्ग विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स. येस, all the documents required are mentioned right here. Even documents required for minority candidates. Yes guys, domicile certificate of candidates. Yes guys, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है एंड डिक्लेरेशन ऑफ योर लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी भी लगने वाला है गाइस. इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स देन लीविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी है गाइस, हैविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिलीजन एंड मदर टंग. सो येस गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है. यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन मेंशन है गाइस कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कौन से नहीं. सो मेक श्योर 2 से 3 बार ये PDF आप अच्छे से गो थ्रू कर लो एंड मेक श्योर टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन रियली वेल बिफोर स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशंस गाइज, बिकॉज वहाँ पे कोई हम मिस्टेक नहीं कर सकते. इफ़ हमने वहाँ पे मिस्टेक की देन एप्लीकेशन कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाइज. सो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लो. फिर भी गाइज अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है सो येस डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और एल्स नीचे दिए गए कैप राउंड नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो. वी आर हैप्पी टू गाइड यू, विल गाइड यू फॉर फ्री. जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डाउट्स है गाइज मेक श्योर आप हमसे कनेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लो एंड मेक श्योर टू रीड दिस list of required documents twice. इस I'll provide the link of this PDF in the description, so आप वो भी चेकआउट कर सकते हो guys. So yes guys, that was it for this video. All these required documents are mandatory and make sure कि आप ये सारे documents scanned and ready रखो as per your candidate type. एंड ऐसे ही आगे की अपडेट्स के लिए गाइज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस एंड मेक श्योर कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो ऐसे ही अपकमिंग और वीडियोस के लिए, बिकॉज आपको सारे कैप राउंड रिलेटेड वीडियोस मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस पे ही मिलने वाले. सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस.